हाँ जी। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ 91st ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਡੈਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਲੋਐਸਟ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਪਰ 2011 ਸੈਂਸਸ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਸ਼ ਹੈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੱਸਤਾ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀਰੀਅਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਵਾਜ਼ ਅਪॉइंटेड ਐਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ 1947। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਸੀਗੇ। ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ? ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰਚੰਦ ਮਹਾਜਨ, ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ, ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰਚੰਦ ਮਹਾਜਨ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਰ ਹੈਲਡ ਫॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर डैश अंडर डैश रिफॉर्म्स। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ? ਤੇ 1921 ਚ ਮੋਂਟੈਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ, 1920 ਮੋਂਟੈਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ, 1920 ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਜਾਂ 1921 ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 1920। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਂਟੈਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹਾਊ ਮਚ amount has been provided in the budget 2023 to provide free electricity to farmers by the government of Punjab। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? 12,333 ਕਰੋੜ, 9331 ਕਰੋੜ, 5831 ਕਰੋੜ, ਜਾਂ 3318 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਐਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਬਲੂ ਰੋਬਸ। ਮਤਲਬ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਗਲਦੀਪ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਕੀਮਸ ਏਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੋਨ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਟੂ ਦ ਪੂਅਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? SJSRY, PSCFC, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਆਈ MG ਨਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਆਈ ਬੈਕ ਫਿਨਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ B ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਡੈਸ਼ ਐਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ 1604 ਈਸਵੀ ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ मतलब ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ ਰਤਨਾਕਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਕਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ornament ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਪੇਸ਼, ਗੋਕਰੂ, ਲੌਂਗ, ਤਖਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਂਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ who of the following met ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਨਾਥ, ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਨ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆਜ਼। ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਲੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਾਈਟਰਸ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਰਕ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨੋਟ ਰੋਂਗਲੀ ਪੇਅਰਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਰੋਂਗਲੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਲੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੱਲੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਗਈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਂਗਲੀ ਪੇਅਰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸਲਗਿਸ਼ ਗਰੋਥ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਕੜ ਈਲਡ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਜ਼ ਪੀਕਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਨੋਵਲ ਡੈਸ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਫਸਟ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਿੰਜਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਈਅਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਨਫਰਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ
ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 91st ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A sudden change in the gene which is heritable from one generation to other is known as, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਲੋਨਿੰਗ, ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਬੇਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, who among the following considered as father of artificial intelligence? ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਚਾਰਲਸ ਬੇਬੇਜ, ਲੀ ਡੀ ਫੋਰੈਸਟ, ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ, ਜੇ ਪੀ ਐਕਰਟ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ। ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੌਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਵਰਡ ਕਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਨੀ ਇਜ਼ ਸਵੀਟਰ ਦੈਨ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਕੌਰਨ ਸਿਰਪ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਰਨ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ ਕੌਰਨ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੈਗਾ? ਡੈਕਸਟਰੋਸ, ਲੈਵਿਊਲੋਸ, ਸੁਕਰੋਸ, ਫਰਕਟੋਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲੈਵਿਊਲੋਸ। ਲੈਵਿਊਲੋਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਹਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿੱਠਾਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਫॉर ਵਹੀਕਲਸ ਫॉर ਵਟ ਪਰਪਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ PB ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ HR ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ BH ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਟੂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਵਹੀਕਲਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 5 ਵਹੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਟੂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵਹੀਕਲਸ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਏ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਵਹੀਕਲਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹੀਕਲਸ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, RBI increased the limit of fund transfer under the Indo-Nepal remittance facility scheme to rupees per transaction from 50,000 at present। ਮਤਲਬ ਕਿ RBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 80,000, 1 ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ JB ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्ट टैक्सिस एंड कस्टम्स। तो इसका आंसर है जी पहला तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सिस। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ International Monetary Fund has made an allocation of special drawing rights
12.57 billions to India, who represents India on the board of governor of IMF। मतलब कि IMF ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ IMF ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI ਹੁੰਦਾ ਹੈ, RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨ ਦ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ 2 ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੌਨ ਦ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਇਵੈਂਟ। मतलब कि टोक्यो ओलंपिक्स ਜਿਹੜੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਨੇ, ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ, ਹਾਈ ਜੰਪ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਦਰ। ਇਹ 2 ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਮਿਸ ਹਰਸ਼ਾ ਭੁਪੇਂਦਰਾ ਭੰਗਾਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। मतलब कि भूपेंद्र भंगारी ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MD ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ, NHB, ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ। Next है which country started the world's largest plant designed to suck carbon dioxide out of air and turn it into solid rocks। मतलब कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਰੌਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ, ਸਵੀਡਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਆਈਸਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IPS ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਟਰਾਈਬਲਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज अडॉप्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि हिंदी जी देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब लिखण का तरीका हो गया, जिवें आपां पंजाबी नूं गुरमुखी लिपि दे विच लिखदे हैगे तां इनू जिहड़ा है इंडिया के किहड़े आर्टिकल दे विच अपना ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता है? 126, 143, 267 या 343। तो इसका आंसर है जी पहला तो 343। हुण जे इत्थों भी ना याद आवे आर्टिकल तुसीं इदां भी लगा सकदे हो। देखो अपना पहला तो यूनीयन के आर्टिकल चलते हैं 51 तो लैके 152 तक। बेसिकली 52 तो लैके आर्टिकल 52 तो लैके 151 तक ये चलणगे। 152 तो लैके 237 तक चलते हैं अपने जेडे स्टेट वाले आर्टिकल ने। तो इत्थों की तो 2 ऑप्शनस ऑलरेडी एलिमीनेट हो चुकियां नेगियां। इस तो बाद तुहानूं पता पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की गल करते हैं, शेड्यूल एरियाज़ की गल करते हैं। शेड्यूल एरियाज़ के बाद जिहड़ा है फिर जिते आके अपने लास्ट वाले टॉपिक्स दे विच जिहड़ा है आपां लैंगुएज की गल करते हैं। तो जे बाई चांस इदां भी याद ना आवे, सारे आर्टिकल जरूरी नहीं हुंदा भी याद ही होने होण, बट तुसीं जिहड़ा है थोड़ा जिहा स्मार्टली उत्थे दिमाग लगा के भी इदां दा आंसर एलिमीनेट करके आंसर चैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच IIT launched Project Udan, a software ecosystem that translates scientific and technical content from English to Hindi and several other Indian languages। मतलब कि भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸਾਰੇ IIT ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ IIT ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਡਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। IIT ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ IIT ਬੰਬੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ when is the international day for elimination of racial discrimination observed।
मतलब कि अपना जिहड़ा नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाला दिन है ये आपां किहड़ी तरीक नूं मनाने हैगे आ, मार्च 18, मार्च 21, 23, 24। तो इसका आंसर है जी अपना मार्च 21। नेक्स्ट है विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर द प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। मतलब कि ਕਿਹੜੀ स्टेट है जिन्हें पहली बनी हैगी है ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाने वाली, तो यह PM कुसुम स्कीम के अंडर जी है पहली स्टेट बनी है इंडिया के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो इसका आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द इंडियन नैशनल कांग्रेस एट कानपुर सैशन ऑफ 1925। हुण इत्थे ध्यान नाल पढ़ो जी, पहला तो इंडियन वुमेन क्या है, क्योंकि बच्चों को की लगता है कि भी आपने वुमेन लिखा हुआ दिख गया तो बस आपने की करना है एनी बसंत ला देना है, क्योंकि एनी बसंत ने जेडे कांग्रेस के पहले वुमेन प्रेसिडेंट सी। बट इत्थे पूछा है अपने इंडियन वुमेन ने जेडे कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट सीगे, तो उन्हों का आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नूं आपां जिहड़ा है जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोयल भी कहने हैं। इन्होंने ही जिहड़ा है मुहम्मद अली जिन्होंने एक मतलब टाइटल दिता सी अंबैसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस तो इलावा ये काफ़ी मतलब वुमेन फ्रीडम फाइटर्स दे विचों इन्हां दा काफ़ी उच्चा नाम है जी। आज़ादी तो बाद भी जिहड़ा है ये अपने यूपी के गवर्नर के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर रहे नेगे। इन्हां दियां मतलब 40+ के करीब जिहड़ियां ने किताबां भी लिखिया गई ने। तुसीं कमेंट करके दसना जी जिहड़े एनी बसंत सी, एनी बसंत किहड़े सैशन दे विच अपने जिहड़े ने कांग्रेस के प्रधान बने सी ते ओह सैशन होया कदों सीगा ये चीज़। नेक्स्ट है विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बनारस एंड इलाहाबाद। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਖਤ ਖਾਨ ਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਟਾਇਲਰ, ਕਰਨਲ ਨੀਲ, ਕੋਲਿਨ ਕੌਂਬੈਲ, ਨਿਕਲਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰਨਲ ਨੀਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇਨ ਏ ਚਾਈਲਡ ਆਫ 3 to 4 years ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਡੂ ਨੋਟ ਇਨਕਲੂਡ। मतलब जो आप कहने कि बच्चा होंगे छोटा या वो दुध वाले दंद निकलते हैं तो वो किहड़े दंद नहीं होंगे है। हुण पहले तो थोड़े जे दंदा बारे समझ लो जी। मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर। पहले तो यदा आंसर आया अपना मोलर। मोलर की होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आया हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फाउंडिंग फादर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੋਹਸਿਨ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਆਗਾ ਖਾਨ, ਨਵਾਬ ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਆਫ ਢਾਕਾ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। नेक्स्ट आया 9th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सिस एक्सरसाइज खंजर 2022। मतलब इंडिया और किर्गिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਖੰਜਰ 2022 ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਬਕਲੋ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪੁਣੇ, ਜੈਸਲਮੇਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਕਲੋ। नेक्स्ट आया द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ग्रांटेड ए लोन फॉर ₹7500 crore फॉर द मिशन स्कूल टू एक्सीलेंस ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। मतलब कि वर्ल्ड बैंक और AIIB ने जिहड़ा है इन्ने 1000 करोड़ का लोन दिता, 7500 करोड़ का लोन दिता है किहड़ी स्टेट नूं दिता है स्कूल मिशन नूं अगे वधाउण दे लई? हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, गुजरात। तो इसका आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर डी गुजरात। नेक्स्ट आया द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव अफसर टू इनकरेज एंड सपोर्ट द टैलेंट ऑफ डैश वुमेन आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन एंड प्रोवाइड दैम विद द राइट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अफसर नाम का इनिशिएटिव लिया है
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੂਮਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਏਮਸ ਟੂ increase the skill level of around 2.71 lakh target youth over next 5 years by providing them free training for long term and short term skills। मतलब कि भारत सरकार ने ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.71 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਯਮ ਦਕਸ਼ ਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰਮਨਿਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਕਸ਼। तो आज के सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ गाइस इन्ना ही, मिलते हैं जी नैक्सट सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं इस मॉक 91 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? ब्रेन, माइंड, एल्क, क्लोनर और न्यूमैन। तो अगर मैं बात करता हूं तो पहला बूट सेक्टर वायरस जो था दैट इज आपके पास ब्रेन, उसका नाम क्या था? ब्रेन आपके पास जो था फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीवर्ड 14, 12, 13 एंड 15। तो नंबर ऑफ आपके पास कीवर्ड जो के ऊपर फंक्शन कीज होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? F1 से लेके F12 तक आपके पास होते हैं, और इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे F1 जो है हेल्प के लिए होता है, F2 जो है रीनेम के लिए होता है, F5 जो है रीस्टार्ट के रिफ्रेश के लिए होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। कम्बिनेशन के साथ भी इनका यूज होता है, विदाउट भी होता है। ठीक है, होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच की डू यू प्रेस टू चेक द स्पेलिंग? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? यहाँ पे F7 का यूज करते हैं। थिसोरस आपके पास ओपन हो जाता है जिसमें स्पेलिंग वगैरह सारी की सारी चेक हो जाती है। इसके साथ में शिफ्ट प्लस F7 होगा। पर वो आगे है विच ऑफ द PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation without having spent too much time on it? Auto wizard, content, animation, कॉल और स्कीमा या फिर चार्ट विजार्ड। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड अगर हम लोग यहाँ पे इसका पिक करते हैं तो ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है फॉर्म दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेसेस डाटा इन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। रोज और कॉलम जहाँ पे भी आ जाते हैं वहाँ पे क्या मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन शीट, रजिस्टर, बिजनेस या फिर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में होता है रोज एंड कॉलम, मतलब एक्सेल की बात यहाँ पे होती है। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। प्रिंट करना है तो आपके पास कंट्रोल प्लस पी आता है यहाँ पे प्रिंट के लिए। ठीक है, याद रखेंगे प्रिंट। और सी का मतलब होता है कॉपी, एस का मतलब होता है सेव, और वी का मतलब होता है पेस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? PASTE, पेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू अ वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउजर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट या फिर वर्ड प्रोसेसर। अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करूं तो ये तो होता है आपके पास MS वर्ड, ये तो आंसर नहीं बनेगा। आपके पास स्प्रेडशीट की बात करूं तो होता है MS एक्सेल, ये भी नहीं बनेगा। वेब सर्वर के ऊपर तो चढ़ाते हैं, तो एक ही आंसर बचा है दैट इज ब्राउजर। आंसर इज ब्राउजर। नेक्स्ट डैश इज अ स्पेशल type of optical scanner used to recognize that type of mark made by the pen or pencil। OCR, BCR, OMR या फिर MICR। अगर मैं बात करता हूं तो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR बारकोड रीडर और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पे रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इज नॉट लेजिटिमेट चैनल? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर डबल डुप्लेक्स। अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर क्या बनेगा? डबल डुप्लेक्स। इसका आंसर क्या बनेगा? डबल डुप्लेक्स यहाँ पे आंसर बनेगा। डन। चलिए तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीकली मॉक टेस्ट। तो आज का वीकली मॉक टेस्ट रीजनिंग में क्या क्या रहेगा एक बार चेक करते हैं।
हाउ विल यू कोड अकोमोडेट इफ S and B आर कोडेड एज 8 and 5 रिस्पेक्टिवली। अब देखो S क्या कोड उसने यहाँ पे दिया है 8 और V विक्ट्री का कोड दिया है आपके पास यहाँ पे 5। अगर मैं अल्फाबेटिकली बात करता हूँ तो S का कोड जो आपके पास होता है वो कितना होता है 19 और यहाँ पे होता है 22। अगर बात करें तो इन दोनों का अपोजिट सम कितने के बराबर बनेगा 27 के बराबर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई नहीं बना, तो इस बात का मतलब था कि यहाँ पे जो आपके पास गिवन किया गया वो लेटर का अपोजिट सम यहाँ पे गिवन किया गया है। तो ए के अपोजिट कितना आएगा 26। अब मैं यहाँ पे कटिंग लगाऊंगा, देखो कटिंग लगाऊंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 26 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे तो 2 है कैंसिल आउट, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं आपके पास ई का मतलब था आपके पास अपोजिट में इसका कोड था 5 के अपोजिट में कितना बनना चाहिए था 22, ये भी कैंसिल आउट क्योंकि 7 है। तो इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। देखो सीधी सीधी बात है, तो जो यहाँ पे 26 24 मैं यहाँ पे चेक करूंगा 24 और 7 में थर्ड पे अब देखो 3 के अपोजिट 24 बनना चाहिए था, कैंसिल आउट, खत्म। आंसर इज बी ऑप्शन। मैं पूरा तो चेक ही नहीं कर रहा, मैं तो सीधे कटिंग लगा रहा हूँ जी, ठीक है। लेटर का अपोजिट हम 27 के बराबर बनाना था। आगे देखते हैं, अब आपके पास था यहाँ पे ये सीरीज DEF HIJ और MNO। अगर बात करता हूँ देखो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 4 5 6 8 9 और 10 और यहाँ पे 13 14 और 15। तो यहाँ पे कितने का गैप है दोनों के बीच में 6 और 8 के बीच में 1 का मतलब 7 का। और इन दोनों के बीच में आपके पास कितने का गैप है, अगर 10 से 13 की बात करी जाए तो 6 नहीं 2 का गैप है, 6 7 मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11 और 12 मतलब 2 का 11 और 12 है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ तो आगे 3 का गैप आएगा। देखो जी कैसे 11 13 ना 15 16 17 और 18 3 का गैप आ गया। आगे 19S, ठीक है, 20 19 के बाद आएगा 20 T और U 21। ये आंसर आएगा ए ऑप्शन, खत्म। ए ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। इस तरीके से आप लोग इसे निकाल सकते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ रैट रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, 20 फीट होता है एक्चुअल में इसका मीनिंग, टू ईस्ट एंड टर्न राइट एंड वो 10 फीट, turn right and 9 feet, again turn left and run 5 feet, ठीक है, and then turn left and 12 meter, ठीक है, and finally turn to left and go 6 feet, ठीक है। इन चीज बोला जाता है। now which direction is the rat facing, rat is facing northern, रेड इज फेसिंग नॉर्थन साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इन अ क्लास अमंग पास्ट स्टूडेंट। देखो पास्ट स्टूडेंट की बात करी गई है। अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड सेजल, देखो अमीशा इज, यहाँ पे ऐसे बना लो, अमीशा जो है वो कितनी 22nd फ्रॉम द टॉप, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ 22nd अमीशा जो है फ्रॉम द टॉप, है ना। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड आगे है सेजल हु इज 5 रैंक बिलो ऑफ अमीशा, 5 रैंक 1 2 3 4 5 आपके पास कौन है, आपके पास 5 रैंक यहाँ पे कौन होगी, अमीशा, सेजल सॉरी, अमीशा इज सेजल हु इज 5 रैंक बिलो ऑफ अमीशा, सेजल हु इज 5 रैंक बिलो ऑफ अमीशा, ठीक है, इज 30 फ्रॉम 4 फ्रॉम द बॉटम, और कहाँ से 34 फ्रॉम द बॉटम, 34 फ्रॉम द बॉटम से आपके पास यहाँ पे ये है, ठीक है। बॉटम मतलब आप लोग राइट से ले लो या फिर बॉटम आप लोग लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे अगर मैं बात करता हूँ, ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन दोज फेल्ड, पास और फेल की रेशियो है 4:1, पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना है 4:1 है। दैट हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए क्लास। अब देखो बेटा अगर इसका रैंक यहाँ से जो है 34 है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो 34 में 22 से अगर यहाँ तक टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1 आप लोग करेंगे तो टॉप से कितना था आपके पास यहाँ पे, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ इसमें क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बारी। अगर इसका रैंक बॉटम से जो है 34 है,
टॉप से अगर यहाँ पे जाएंगे तो 22 + 5 आपके पास कितना बन जाएगा, 27, एक ही बंदे का, तो आपके पास 27 प्लस माइनस ऑफ 1, तो टोटल कितना आएगा 60। टोटल कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 60 जो है आ जाएगा। टोटल जो है वो आपके पास कितना आएगा 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये निकला है जो आपके पास पास स्टूडेंट है, आपके पास यहाँ पे क्या निकला है, जो आपके पास पास स्टूडेंट है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो ये पास स्टूडेंट आपके पास निकल के आ गया है। अब पूछा क्या था फेल, अगर फेल की मैं बात करता हूँ तो आपके पास रेशो क्या है, पास और फेल का रेशो 4:1। पास और फेल का रेशो कितना है, 4:1 आपके पास है। तो अब आपसे यहाँ पे निकालना है कि टोटल कितने हैं, तो टोटल निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं ना, 60 टोटल हैं डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 4, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 ओके 12 20, हाँ, और इज इक्वल टू 5, यहाँ से काटा कितना आ गया 20, और यहाँ से आप अगर निकालते हो तो कितना आता है -5 इज इक्वल टू 15, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 15 आपके पास फेल है, 15 जो है वो क्या है, फेल है, और ये क्या है, पास है। तो टोटल आप अगर मैं बात करता हूँ तो पास प्लस फेल कितने हो जाएंगे, 60 + 15 कितने आ जाएंगे, 75 आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है। अब टोटल कितने थे, 60 है, तो एक्चुअल में इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है रेशो में, है ना, 4/5 जो दोनों का टोटल होता है इन दोनों का वो नीचे आ जाएगा, और पास निकालने थे 4 तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इजिकल टू x यहाँ पे लगाना पड़ता है, मैंने इंटू x नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो मैंने इस तरीके से भी यहाँ पे निकाल लिया। सो आल्सो यू कैन डू दैट सेम थिंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, पॉइंटिंग टू रविंदर रीना सेज, रविंदर की तरफ इशारा करते हुए कौन कहता है, रीना सेज। रीना ने कहा, रीना ने क्या कहा, देखते हैं रीना ने क्या कहा, ही इज द सन, मतलब रविंदर जो है सन है ऑफ माई मदर्स ब्रदर वाइफ, माई मदर का ब्रदर की वाइफ का बेटा कौन है, रविंदर। अब आपके पूछा है हाउ इज रीना रिलेटेड टू रविंदर, रीना जो है रविंदर की क्या लगती है, तो रीना जो है आपके पास उसकी कजन सिस्टर लगेगी, तो आंसर क्या आएगा, कजन। आंसर क्या आएगा, कजन आपके पास इसकी लगेगी। मतलब रीना जो है रविंदर की क्या लगती है, तो उसके मामे की बेटी यहाँ पे लगती है, ठीक है। चलिए या रविंदर की अगर अच्छा पूछा गया हाउ इज रीना, अगर रीना का पूछा था, ठीक है ना। चलिए हमने जेंडर रीना पता था तो इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव दे ही नहीं पाए, तो सिंपल हमने कजन लिख दिया कि या तो भाई होगी या तो बहन होगा, बट हम नाम से किसी को बताते नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले में है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, P Q R S T V W and Z traveling to 3 destination Delhi, Chennai, Hyderabad in 3 different vehicle, Honda City, Swift Desire and Ford Icon. There are 3 female among them in each the car, ठीक है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन देख ली। There are at least 2 person in each car, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ के सिर्फ इतना सही समझ में आया है। और 3 कारें हैं तो 3 कारें बना लो जी, पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार। तो जी 3 कारें हैं और 3 आपके पास व्हीकल है। आपके पास क्या था, R इज नो ट्रेवलिंग विद Q and W, मतलब अगर मान लो कि R अगर इस कार में है तो Q और W इस कार में नहीं आएंगे, उसने मना कर दिया है। T अ मेल इज ट्रेवलिंग विद ओनली Z, बोला है T जो कि मेल है इज ट्रेवलिंग ओनली Z, अगर ओनली वर्ड आ गया है तो ओनली वर्ड में आपके पास यहाँ पे ये बात खत्म हो गई कि यहाँ और कोई नहीं आएगा। तो मतलब अगर ये मेल है तो ये एक फीमेल है, क्यों, क्योंकि हर एक गाड़ी में एक फीमेल थी, ठीक है। देन आगे आपके पास लिखा है एंड दे आर नो ट्रेवलिंग टू चेन्नई, और ये चेन्नई नहीं जाएंगे। लो जी अगर ये चेन्नई नहीं जाएंगे, P इज ट्रेवलिंग इन होंडा सिटी टू हैदराबाद। अब देखो आपके पास क्या है, P जो है होंडा सिटी, और डेस्टिनेशन हैदराबाद। देन आगे आपके पास यहाँ पे है S इज द सिस्टर ऑफ P, लो जी S के बारे में पता चल गया, S जो है सिस्टर ऑफ P है, एंड ट्रेवल बाय फोर्ड आइकन, और कौन सी गाड़ी है, फोर्ड आइकन। लो जी आगे आपके पास क्या है, V एंड R ट्रेवल टुगेदर, V एंड R ट्रेवल टुगेदर, तो V यहाँ पे आ जाएगा, V एंड R ट्रेवल टुगेदर। W इज नॉट गोइंग टू चेन्नई, मतलब W इस कार में भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब W जो है चेन्नई नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 2 पैरामीटर बच गए हैं, Q और W, वो इस कार्य में आ जाएंगे, तो चेन्नई यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो चेन्नई यहाँ आ जाएगा
उसने कहा कि चेन्नई यहाँ पे भी नहीं आएगा जहाँ डब्ल्यू जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं आगे सॉरी, अब आगे यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। आपके पास पी होंडा सिटी गाड़ी में है, तो पी इस गाड़ी में आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तीनों चीजें हैं इसमें, आपके पास पर्सन भी है, लोकेलिटी भी है और गाड़ी भी है, तो यहाँ पे जगह तो आ गई है। पी इसमें भी नहीं आएगा तो पी इसमें आएगा। पी कौन सी है? आपके पास होंडा सिटी और हैदराबाद, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एस, तो एस फिर आपके पास इस गाड़ी में तो आएगा नहीं, एस इसी में आएगा जो कि फीमेल है, तो दोनों के दोनों मेल आ गई। ये लो जी, ये दोनों के दोनों मेल, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक है। अगर आगे मैं बात करता हूँ एस जो है फोर्ड आइकन में आएगा, तो लो जी फोर्ड आइकन, ठीक है। और यहाँ पे स्विफ्ट, और एक ही बची है दिल्ली। लो जी, ये डायग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। आगे लिखा है मेंबर इन विच सिटी कार आर ट्रेवलिंग टू चेन्नई। चेन्नई वाले बंदे, चेन्नई के जो हैं वो फोर्ड आइकन है, RBS, RBS फोर्ड आइकन, फोर्ड आइकन, लो जी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है आपके पास? फोर विच ऑफ द कार आर फोर मेंबर ट्रेवलिंग, तो फोर तो किसी में भी नहीं है, गलत, नन आंसर। चलो नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट थ्री फीमेल इन द मेंबर। थ्री फीमेल मेंबर में आपको इसलिए नहीं पता चल पाएगा, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, क्योंकि आपके पास इसके बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला था, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते, सी एंड डी हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते। आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, आंसर आएगा डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं ऑल पेन आर ग्रास ऑपर। ऑल पेन, सारे के सारे पेन क्या है? ग्रास ऑपर, एंड सम ग्रास ऑपर आर क्लाउड, ठीक है, एंड सम क्लाउड आर बोटल। देन आगे क्या है? सम बोटल आर ग्रास ऑपर, सम बोटल आर ग्रास ऑपर, इनके बीच में कोरिलेशन, गलत, पहला गलत। अगला क्या है? सम क्लाउड आर पेन, सम क्लाउड आर पेन, गलत। अगला क्या है? सम नो पेन इज क्लाउड, भाई रिलेशन ही नहीं है, गलत। ऑल पेन आर बोटल, ऑल पेन आर बोटल, गलत। चारों के चारों गलत। अब देखो चारों के चारों गलत है, तो फिर आइदर चेक करना पड़ सकता है, पर ऑप्शन में आइदर में लिखा है ओनली आइदर 2 और 3 फॉलो, 2 और 3, पेन पेन, सम पेन, पेन आगे, क्लाउड क्लाउड आगे, तो आंसर ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। ये कोर्स ऑफ एक्शन की पूरी स्टेटमेंट है। अब देखो आप लोगों के पास यहाँ पे बताया गया है, स्टेटमेंट ही काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है? इंडिया परफॉर्मेंस इन रिसेंट बसन एशियन गेम was very poor. Government has spent a few crores in a training and deputing a team of players to participate in this game. गवर्नमेंट ने बहुत से पैसे खर्च करे पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्स ऑफ एक्शन, इंडिया शुड स्टॉप स्पेंडिंग सेंडिंग प्लेयर टू द फर्दर फ्यूचर एशियन गेम। भाई गलत, हार जीत तो लगी रहती है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, गलत। अगला है गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेटअप एन इंक्वायरी कमीशन टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इंडियन डिसमल परफॉर्मेंस। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस क्यों कम आई है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो आपके पास क्या बोला गया है? एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 9 इन द मॉर्निंग, हाउ मेनी डिग्री विल हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक 5 o'clock। मतलब आपसे पूछा गया है कि 9 बजे अगर यहाँ पे घड़ी है, देखो 9 यहाँ बजते हैं, तो फिर आपके पास नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस तरीके का आएगा। ये देखिए इरेजर,
अगर बात करता हूँ तो ऊपर आपके पास 12, यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 10 और 11। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, अगर मैं 9 से लेके मतलब यहाँ से लेके 9 इस तरीके से बजेंगे तो 5 बजे तक है, तो 1 घंटे में जो आपके पास नीडल है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आर है 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ 30, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर 8 घंटे हैं इनटू में आपके पास 30 है तो आपके पास 240 डिग्री का एंगल जो है, डिग्री जो है यहाँ पे बनेगा, बी ऑप्शन 240 डिग्री का आपके पास एंगल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ, अगली सीरीज क्या है। यहाँ पे 1 4 4 5 10 6 7 एंड 31 चेक करें क्लास। अब देखो आपके पास ऑल्टरनेट सीरीज बन सकती है 4 से 5, आपके पास 4 से 5 गए हो, प्लस ऑफ 3 हुआ है। आगे यहाँ से यहाँ गए हो 10 पे, प्लस ऑफ 6 हुआ है। तो आगे अब यहाँ से कितना ऐड होंगे, 3 का 6, आगे यहाँ पे 3 और ऐड कर लो तो मतलब 9, तो 19। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ तो आगे यहाँ से फिर 3 ऐड कर लो 12, 2 9 और 2 11, 1 2 1 3, ठीक है बन गया। 4 और से 1 प्लस ऑफ 1, 5 से 6 प्लस ऑफ 1 और 6 से 7 प्लस ऑफ 1, मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा 19, जो कि बी ऑप्शन में रहेगा। 19 जो कि बी ऑप्शन में रहेगा। चलिए अब देखो क्या बोला गया है, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा जो है वो लास्ट डे नहीं होगा सेंचुरी का। अगर मैं बात करता हूँ सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होगा तो एक बारी बात करते हैं कि 100 ईयर्स में कितने और डे आते हैं, 5, 200 में 3, ठीक है, 300 में 1 और 400 में आपके पास अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आपके पास आते हैं 0। तो अब आपको ये बताना कि कौन सा नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 5 अब यहाँ पे है आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ 5 में कौन सा आएगा, फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे तो आ जाएगा जी, ठीक है। 3 में अगर बात करता हूँ वेंसडे, ठीक है। 1 में अगर बात करता हूँ मंडे, 0 का मतलब होता है संडे, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, ये तो आपके पास दिन बन जाएंगे, तो बचा कौन सा है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आंसर इज बी ऑप्शन, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ये आपके पास कभी नहीं होंगे, ठीक है, ये तो हो जाएंगे। डन। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। मॉक नंबर है आपका 91। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला गया है, 2 trains leave station P at 5:30 p.m. and 7 p.m. respectively. They travel at 48 km per hour and 60 km per hour. How many kilometers away will the 2 trains meet? तो कितने डिस्टेंस पर दोनों ट्रेन मिलेंगे। देखो, जब पहली ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया तो टाइम क्या था 5:30, और सेकंड ट्रेन ने जब चलना शुरू किया तब टाइम क्या था 7 PM। तो मतलब जब हम कह सकते हैं कि सेकंड ट्रेन ने चलना शुरू किया तो जो फर्स्ट ट्रेन है वो 5:30 से 7 PM तक मतलब 1.5 आवर्स ट्रैवल कर चुकी थी, और उसकी स्पीड क्या है 48। तो 48 की स्पीड से 1.5 मतलब 3/2, तो इसको करेंगे तो 24, तो 24 इंटू 3 तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका था। जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया तो पहली ट्रेन उससे ऑलरेडी 72 किलोमीटर आगे थी। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लगेगी। सेम डायरेक्शन में क्या होती है माइनस, तो 48 और 60 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 12, तो 72 डिवाइड बाई 12, तो मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में दूसरी ट्रेन को 6 घंटे लगे थे। मतलब 7 बजे के बाद कितना टाइम लगा था, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में 60 की स्पीड से उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 360। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, रश्मि एंड पल्लवी कैन कंप्लीट ए कारपेट इन 3 days and 12 days मोर देन द टाइम टेकन इफ बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क टुगेदर। देखो अगर हम मान लें कि दोनों x डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं तो जो ये x की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, जो आपको ये नंबर दिए गए थे ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और उसका स्क्वायर रूट कर दो। 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, मतलब दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते थे। फाइंड द टाइम इन विच रश्मि कितने दिन ज्यादा ले रही थी, 3 days ज्यादा ले रही थी, तो 6 + 3 9 days इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विदाउट पेन पेपर का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम टेक 10 hours मोर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क देन द राम्या इफ they work together, then by what percent should Ramya decrease her efficiency so both of them to complete the work in 20 hours and both of them had complete the piece of work in equal proportion। मतलब equal proportion मतलब दोनों ने आधा आधा काम किया है, ठीक है। अब देखो दो लोग हैं राम और राम्या, तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, राम टेक 10 hours मोर, कि अगर राम्या x में करती है तो राम कितना कर रहा है, x + 10 में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन चेंज कर रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर देन बाय व्हाट परसेंट। अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो राम्या कितना अपनी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी कि दोनों जो है कंप्लीट 20 आवर्स में करते हैं। देखो दोनों ने मिलकर काम किया तो 20 आवर्स राम्या ने किया है, 20 आवर्स राम ने भी किया है, ठीक है। और इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब 20 आवर्स में 50% वर्क किया है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 100% वर्क करना है तो 40 आवर्स लगे होंगे, ठीक है। तो राम की एफिशिएंसी तो सेम थी, तो राम की एफिशिएंसी क्या थी, सेम, तो राम इसको 40 आवर में करता है, तो हम कह सकते हैं कि x + 10 = 40, तो x की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। कि राम्या जिस काम को पहले 30 डेज में कर रही थी अब 40 में कर रही है, ठीक है। टाइम का रेशो क्या है, 30 और 40 मतलब 3:4, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4:3, तो 1/4, मतलब एफिशिएंसी 1 से कम होगी 4 के रिस्पेक्ट में, तो 1/4 मतलब उसकी एफिशिएंसी कितने से कम होगी, 25% से कम होगी। आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, अगर लैंग्वेज और कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टू एंड फ्रो जर्नी, चलो उसने बहुत अजीब सा नाम यूज किया है, द स्पीड ऑफ द बस इज 20 km/h एंड 15 km/h रिस्पेक्टिवली इफ इट टेक 14/5 hours टू कंप्लीट द होल राइड, मतलब जाने और आने में उसको टाइम लगा है जो, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। ठीक है, एक जर्नी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई और फिर वापस आई है। स्पीड दे रखी है आपको 20 और 15, देखो टोटल टाइम भी दे रखा है, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। 5 से डिवाइड करेंगे इसको 3 पे करेगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसको 2 और इसको 5 पे, 5 से डिवाइड करेंगे 4 पे करेगा, 4 × 3 12, 12 × 2 24 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पूछा था, सॉरी, तो 24 गया है और 24 वापस आया है। ठीक है, ठीक है, तो ये उसने जो डिस्टेंस एक साइड जो ट्रेवल किया था वो 24 आया था आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज सर्टेन सम 10 million इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 130 million इन, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 10 million, अमाउंट दे रखा है 130 million, अमाउंट आपको दे रखा है 130 million और टाइम कितना दे रखा है 30 years। ठीक है, देखो यहां से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 120 होगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका R × T होता है। ठीक है, 30 से इसको डिवाइड करेंगे 4, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था मतलब वो 4% लग रहा था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा था आपका, 4% लग रहा था, 40% सॉरी, क्योंकि 120 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1200% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा था आपका, क्योंकि देखो जो 120 है वो 10 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है, 1200% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 40% आ गया। अब उसने पूछा है इन द सेम
amount invested with the same rate of interest but at compound interest it will becomes after 2 years, कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले साल 40 लगेगा, दूसरे साल भी 40 लगेगा, और इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 40 का 40%। ठीक है, तो 16 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 96। ठीक है, तो 10 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो ये 19.6 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ इंटरेस्ट की बात की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इनकम ऑफ अरुण एंड वरुण आर इन द रेशियो 5:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:4 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। देखो उसने सिर्फ आपको इनकम का रेशियो दिया, देखो 5 से 3 और 4 से 7। ठीक है, तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन बनी नहीं रही ना, हमारे पास नंबर तो दे ही नहीं रखा कि कितना कमा रहा था, कितना खर्च कर रहा था। जब तक वैल्यू नंबर में नहीं आएगी तब तक हम डायरेक्ट रेशियो नहीं बता सकते। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड, दोनों की सेविंग सेम है या अलग अलग है वो भी हमारे पास नहीं पता। ठीक है, अगर दोनों की सेविंग अलग अलग है फिर तो मैं कह सकता हूं कि इसने 5 रुपए कमाकर 3 रुपए खर्च किए तो 2 रुपए बचा लिए, 4 रुपए कमाए 7 रुपए कमाए और 4 रुपए खर्च कर दिए तो 3 रुपए बचा लिए, तो 2:3 बन सकता था। बट ये ऑप्शन में भी नहीं है और उसने कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं किया। ठीक है, तो डाटा इस क्वेश्चन का क्या है, इनकम्प्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन परचेज 150 चेयर ईच कॉस्टिंग द सेम। ठीक है, और जो चेयर का जो प्राइस है वो सेम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, ईच कॉस्टिंग द सेम बट 40% ऑफ देम आर डैमेज। उसमें से 40% खराब हो गई थी एंड कांट बी सोल्ड, और उसको बेचा नहीं जा सकता। ही सोल्ड 50% ऑफ द रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट ईच। ठीक है, और जो बची हुई 50% थी, मतलब 150 चेयर खरीदी थी जिसका 40%, ठीक है मतलब कितना 60 चेयर तो खराब ही होगी, तो बची कितनी 90 चेयर। 90 का जो 50% है मतलब 45 चेयर है वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है एंड द रिमेनिंग एट 5% लॉस, और जो बची हुई है उनको 5% लॉस पे सेल करता है। ठीक है, इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज 7740 देन व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑल द चेयर। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि चलो x रुपीज मान लो, ठीक है, जो टोटल अगर हम बात करें जो सीपी है एक चेयर का वो कितना है आपका x रुपीज हो गया, तो 150 में से 40% तो उसने लॉस पे ही सेल, मतलब उसकी खराबी होगी जो वो सेल ही नहीं कर सकता, तो मतलब वो सिर्फ कितनी सेल कर रहा है 90, और 90 में से भी 50% वो प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और 50% वो लॉस पे सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर एक चेयर की कीमत x है तो 45 की क्या हो जाएगी, 45x हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 45x हो जाएगी, और 45x का 120% मतलब जो सीपी है, ठीक है, ये पहले 45 का आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा कितने का आ गया 45 का आ गया। ठीक है, और फिर बाकी जो बचे हुए 45 हैं उसको वो लॉस पे सेल कर रहा है। या आप इसको देखो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी पूरा ही रफ हो गया ये, कोई बात नहीं। टोटल सीपी हमने x माना था, ठीक है, 45 को वो किस प्राइस पे सेल करा, देखो x, तो उसका जो एक चेयर की जो कीमत थी उसके ऊपर वो क्या कर रहा है 20% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब x प्लस x का 20%। ठीक है, 20% कितना होगा उसका 1/5 होगा, 20% कितना हो जाएगा उसका 1/5। और अब इस पूरे प्राइस को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 45 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लॉस पे सेल किया है, ठीक है, लॉस पे सेल किया 5%। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बना लिया। अब इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, देखो 45 तो आपका कॉमन आ गया, 45 कॉमन आ गया, ये कितना बन जाएगा आपका, ठीक है, 6/5x प्लस 19/20x, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 ही होगा, तो 45 × 20। ठीक है, देखो इसको 4 करेंगे
तो ऊपर कितना हो जाएगा 24x प्लस 19x, तो 45 इंटू, अब इनको कितना हो जाएगा ये टोटल 43x डिवाइड बाय 20। आई होप यहाँ तक की ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अब जो ये टोटल नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7740 को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7740 को, ठीक है। 5 अगर मैं इसको देखो 9 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करेंगे इसको 5 पे करेगा, 9 से डिवाइड करेंगे इसको किस पे करेगा 9 इंटू 8 72 बचेगा 5, फिर 6 0 पे डिवाइड करेगा, 43 से डिवाइड करेंगे इसको 20 पे डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 आ गई। तो मतलब एक की कीमत कितनी थी 80 थी, तो 150 की कितनी हो जाएगी 1200। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। इन ए कोचिंग देयर आर 3 बैचेस नेमली, ठीक है, लोलोज मोमोज एंड जोजोज, आउट ऑफ विच out of the total student in the coaching there are 25, 35 and 45 student in the 3 batches। 3 बैच हैं A, B और C। इसमें अगर 25 बच्चे हैं, इसमें हमने 35 बच्चे कर दिए और इसमें 40 कर दिए, ठीक है। If 2%, 4% and 5% student of the respective batches pass, then what is the percentage of fail student? तो फेल कितने हुए थे हमें वो बताना है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल को 1000 मान लेते हैं, टोटल को 1000 मान लेते हैं, ताकि ये 250, ये 350 और ये आपका 400 हो। इसका मुझे अब 4% निकालना है जो पास हुए थे, ठीक है। देखो इसका अगर मैं 1% निकालूं तो 2.5 है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 बच्चे पास हुए, ठीक है। सॉरी इसका तो 2% था, तो 2% मतलब 5, इसका 4% है, इसका 1% 3.5 होगा तो 7 इंटू 14 हो जाएगा, और इसका 5% मतलब 20, ठीक है। देखो अगर टोटल की बात करें 19 मतलब 39 बच्चे आपके पास हुए, ठीक है, बाकी सारे फेल हुए हैं। तो अब इसमें से अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो 961 मतलब फेल हुए थे, और उसको जब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 96.1 बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मिल्क मैन मिक्स 45 लीटर ऑफ, ठीक है, 80 लीटर, ठीक है, उसको मिक्स कर रहा है वो प्योर मिल्क विद 60 लीटर प्योर मिल्क एंड सेल द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 33.33। 33.33 का मतलब है कि कितना 1/3, ठीक है। तो इस रेशो में वो मिक्स भी कर रहा था, 1 और 3 के रेशो में मिक्स कर रहा था, ठीक है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितनी है 4, जिसमें मिल्क कितना है 3/4 है, मतलब 75%। कितना आ गया 3/4 का मतलब 75%। तो पहले में कितना था 80% था, दूसरे में कितना था 60% था, और कंबाइंड में कितना था आपका 75% था, ठीक है। अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 5, मतलब ये किस रेशो में है आपका 3 और 1 के रेशो में। 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रोनी इन द फुटबॉल कैरियर स्कोर 12 गोल्स ऑन एन एवरेज इन 10 मैचेस, मतलब 12 मैचों में 10 मैचों में 12 गोल के हिसाब से टोटल गोल कितने बन रहे हैं 120 बन रहे हैं। इफ ही स्कोर्ड 11 ऑन एन एवरेज इन फर्स्ट 4 मतलब 44 एंड 13 इन द लास्ट 4 मतलब 52, तो बचे कितने 96, और मैच कितने हो गए 8 मैच में 96 आ रहा है, तो कितना बचा हमारे पास 24 बचा, ठीक है, ठीक है। और मैच कितने बचे हुए हैं 2 मैच बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 10 मैच थे, 24 डिवाइड बाय 12, तो बचे हुए मैचेस में जो एवरेज होगा वो 12 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1,99,760 at the rate of 8% per annum after 12 years. Find the compound interest on that sum at the same rate after 3 years. देखो 8% सिंपल इंटरेस्ट लगा है 12 ईयर के लिए, तो R इंटू टी मतलब 96% इंटरेस्ट मिला था, और ये तो आपको जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है, ठीक है, अमाउंट दे रखा है। तो मतलब अमाउंट तो 100% प्लस 96 मतलब 196% की वैल्यू है 109,760,
तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 196 से डिवाइड कर दूं और इंटू 100 में कर दूं, प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये किस पे डिवाइड करेगा, 19 इंटू 5 पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले 19 इंटू 5 95 होता है, 5 पे करेगा, और पीछे लास्ट में 6 है तो फिर 6 पे ही डिवाइड हो सकता है आपका, ठीक है। तो मतलब 56,000। अब इसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3 ईयर के लिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3 ईयर के लिए। तो मतलब ये हो जाएगा 24 प्लस 8 का स्क्वायर 64, मतलब अप्रोक्स 1.92। तो अगर अप्रोक्स की मैं बात करूं लगभग 26% कैलकुलेट होगा इसका। अगर हम इसका देखो 56,000 इसका 1/4 करते हैं तो 14,000 होगा। तो 14,000 के आसपास एक ही ऑप्शन आपका है, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ अशोक एंड बानू अर्निंग इन द रेशियो 4:9, दोनों की जो अर्निंग का रेशियो 4:9 है। If Banu's earning is increased by 45%, then his total earning becomes 3930. What is the earning? अशोक की अर्निंग हमें बतानी है, ठीक है। और हमारे पास अशोक और भानु की जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है। चलो ऑप्शन से तो इस क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं होगी क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें वैसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर ये 40 और ये 90 है, ठीक है, या इसको 4x और 9x मान के ही कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज ऐसा है जो पॉइंट्स में ही जाएगा आपका, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 9x प्लस 9x का अगर 45% और इसमें ऐड कर दिया जाए तो 9x कॉमन आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 145 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 33930, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं सबसे पहले इसको 9 से ही डिवाइड करूँ, 9 इंटू 3 27, कितना बचेगा 663 हो जाएगा, फिर 7 पे करेगा, फिर 7 पे करेगा और फिर 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको 145 से ही डिवाइड करते हैं तो 145 से डिवाइड करेंगे तो किस पे डिवाइड करेगा, पहले तो 2 पे करेगा, ठीक है, पहले 2 पे करेगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 290 और उसके बाद आपका ये 6 पे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2600 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2600। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी। और वैसे देखो ये समझ आ रहा था कि जैसे 2 पे डिवाइड हुआ तो मतलब जो भी नंबर होगा वो 200 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट में 00 लगेंगे आपकी, ठीक है, मतलब 2000 से बड़ा ही नंबर जाएगा। और 2000 से बड़ा नंबर जब जाएगा, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही ऑप्शन था कि 8000 से बड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप वहां से भी लगा सकते थे, पूरा डिवाइड अगर ना भी करते। आई होप यहाँ तक सब बच्चों के क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Welcome to this English part of the mock. Let's check what we have in store as per the mock number 91. Select the choice that has an error or select choice D for no error. My friend told me that he will visit me. Since ये start आपका past से हुआ है, अंदर भी आपका past होना चाहिए, तो will का vote हो जाएगा। The answer has to be option number B. The members casted their votes. Members को देखकर there तो absolutely correct है, there को देखकर votes भी correct है, लेकिन casted is no word. The past form itself says cast. 10 children participated in the competition and each one of them, every one of them was given a prize. हर किसी को प्राइज मिला था। यहां पे एम्फेसाइज करने का कोई रोल नहीं है। Followed by the members of the society discussed about. Discussed का मतलब डिस्कस किया था, किसी के बारे में ही किया होगा, इसके साथ अबाउट नहीं लगाया जाता है। डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द इलेक्शन। अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है सूटेबल प्रेपोजिशन के साथ। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, प्रेफर के साथ टू लगता है। अगेन आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं इच्छुक हूं म्यूजिक का, मतलब फॉन्ड के साथ क्या लग गया, ऑफ लग गया। अब फ्रॉम बिहाइंड ये जितने हैं सब कट हो गए और आंसर आपका ये।
आपके पास नेक्स्ट आता है वो वर्ड और फ्रेजेस जो नीचे गिवन है, जो आपको अंडरलाइन फॉर्म में दे रखे हैं या बोल्ड में दे रखे हैं। वेल्थ एक्वायर्ड थ्रू डिसऑनरेबल मीन्स लीड टू मॉरल डाउनफॉल। जो वेल्थ एक्वायर की गई है डिसऑनरेबल मीन से, वो आपको मॉरल डाउनफॉल पर लेकर जाती है। तो आपको इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग हो जाएगा डिसक्रेडिटेबल, जो अच्छे क्रेडिट से नहीं की गई है। अगला फिर से आपको मीनिंग बताना है। सेज व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन, क्या मीनिंग आपने यहां से ड्रॉ किया है उसके टंग से इन चीक रिमार्क्स। तो क्या हो जाएगा, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या निकाल पा रहे हैं, निचोड़, विच मीन्स डिड्यूस्ड। वन हु इज अनरिलेटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय एंट्रीटीज, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक पर्सन जो अनरिलेंटिंग है और मूव नहीं किया जा सकता एंट्रीटीज के द्वारा, दैट इज इनएग्जॉरेबल। एन एसोसिएशन इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, जो आपके साथ काम करने वाला, उसको क्या बोला जाता है, कलीग। यहां पे आपके पास सिनोनिम निकालना है इंडिगेंस का। इंडिगेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अनाथ टाइप है ना, जिसको पॉवर्टी लगा लीजिए, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको चारों सेंटेंसेस में से। चारों सेंटेंस बी सी डी, एक तो आपके पास आया ही नहीं है। इट शुड बी इफ आई मेट हरीश। यहां देख लेते हैं, यहां वाला तो एक आया ही नहीं है, पहला ऑप्शन। बट चलो आंसर मुझे फिर भी मिल रहा है, तो मैं पहले वाले को इग्नोर ही करूंगा ऑफ कोर्स। वो कैसे, पास्ट से स्टार्ट हुआ है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ मेट है, यहाँ पे हैड नहीं आएगा। मैं कर लेता तो वुड तो लगेगा ही लगेगा। मोस्ट प्रॉब्ली पहले वाले में विल होगा, विल भी नहीं लगता है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। देयर वी गो विद दिस। थैंक यू।